ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੂੰਹ ਕੁਚਰੇ ਸਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਖਰੂ ਸੁਨੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਜੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਹੈ, ਯੱਗ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ, ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ जुड़ना। कलयुग में कीर्तन प्रधान। तो करते पुरख की कीर्ति आप कीर्तन राणी सरवण कर रहे थे। इस वक्त जो विचार बने ने वो मैं थोड़े समक्ष भेंट करने की कोशिश करा। समुचे जगत की कोशिश तो बड़ी है कि पहुंचिए परमात्मा तक, गमन करिए ईश्वर तक, लेकिन पहुंच हो नहीं रही। जमीन के उत्ते इस वक्त कोई 4 अरब के करीब मनुख ने, पर उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जिन्हां दी पहुंच परमात्मा तक है। बल्कि कुछ तो सियाणे कह रहे हैं कि ये जिहड़ी सदी है, ये जिहड़ी 20वीं सदी लंघ रही है, इसने चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे बिजनेसमैन पैदा किए ने, चंगे सियासतदान भी पैदा किए ने, चंगे भगत नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। यह जिहड़ी सदी है, पिछलियां सदियां विच चंगे ऋषि पैदा होए, संत पैदा होए, अवतार पैदा होए, आलम पैदा होए, पर ये जिहड़ी सदी है, इस सदी ने चंगे इंजीनियर पैदा किए ने, चंगे डॉक्टर पैदा किए ने, चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे राजनीतिक पैदा किए ने, और इसी तरीके नाल चंगे व्यापारी पैदा किए ने, चंगे ब्रह्म ज्ञानी नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। कुछ वातावरण माहौल ही ऐसा बन गया है कि मनुख सियासतदान बनना चाहता है, मनुख डॉक्टर बनना चाहता है, मनुख व्यापारी बनना चाहता है, मनुख राजनीतिक बनना चाहता है, मनुख दिलों भगत नहीं बनना चाहता। बगौर कदी मुताला करो। तो इस वास्ते कहने ने कि 4 अरब की इस मखलूक विच 2 हत्थां दीआं उंगलियां ते उन्हां बंदियां नूं गिण सकदे हां जिन्हां दी पहुंच गुरु तक होवे, जिन्हां दी पहुंच अकाल पुरख तक है। बाकी रस्ते च ही रह गए, नहीं पहुंचे।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਦਰ। ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲਬਨ 3 ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ, ਉਸ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਰਹੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਦਰ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਔਖਿਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे रहना है वो दर किथे है, वो दर केड़ा है? गुरु नानक का यह सवालिया नुकता, प्रश्न, इनू प्रश्नमई बचन कहते हैं। जिन्हां बचनां विच, जिन्हां शब्दां विच कोई सवाल होवे, कोई प्रश्न होवे। जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी बन गया। उदासी तो मुराद उपराम हो गया, संसार तो उपराम हो गया।
और मैं इतनी अर्ज कर दिया है, यही संसार सब कुछ है, तो संसार तो उच्चा उठण की सुरत नहीं पैदा होती। यही जीवन सब कुछ है, तो परम जीवन प्राप्ति की मनुख के अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के रस ही सब कुछ ने, तो नाम रस की चर्चा बेमैनी फिजूल है, क्योंकि जगत के रस ही सब कुछ ने। महाराज कहते जिस घर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, मैं उपराम हो गया, मैनू कोई आके दसे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे, ओ घर मैनू कोई दसे। जिसनू लभदा लभदा मैं उपराम हो गया, थक गया, तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो इस चक्कर विच ना पैना कि परमात्मा का जिहड़ा घर है कोई इट्टां ते पत्थरां दा बनिया है, लकड़ का बनिया है, सोने का बनिया है, चांदी का बनिया है, ऐसी गल नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक शक्ति है। व्यक्ति एक देसी हो सकता है, सर्वदेसी नहीं। जैसे मैं इत्थे मौजूद हाँ, दूजे शहर विच नहीं, दूजी थां ते नहीं। मनुख व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारिया थावां ते नहीं हो सकता। तुसी इत्थे बैठे हो, घर विच नहीं हो, जे घर विच होवोगे तो इत्थे नहीं हो। व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारिया थावां ते नहीं हो सकता। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है परमात्मा ते व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक शक्ति और व्यापक है, सर्वदेशी है, व्यापक है। इस वास्ते वो व्यक्ति नहीं, वो आकार नहीं, वो एक निराकार है। आकार तो रहता है, फिर उसका घर किथे है? जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा आकार तो रहत है, जिहड़ा रंग रूप तो रहत है, जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहत है, उसका घर किथे है? किवें उस तक पहुंचिए? तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल नूं खोलिया। आप कहते ने कि 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। मैं गल छेड़ बैठा, पर जिहड़े कुछ अभ्यास करते होणगे शायद उन्हां दे कुछ पल्ले पै। अभ्यास तो मुराद गुरु घर विच अभ्यास खड़ा है जप ते जाप ते। 10वें ग्रंथ की पहली बाणी है जाप। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी है जप। जप बाणी का नाम है, ते जप शुरू होता है आद सच जुगाद सच। ऊपर जिहड़ा एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक है ना, ये मूल मंत्र है, ये मंगला चरण है। इसका जपजी साहब नाल कोई तल्लुक नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं कि जिथे किधरे नवा कोई राग शुरू होता है, नवी बाणी शुरू होती, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये मूल मंत्र मौजूद है। ये मंगला चरण के रूप में मौजूद है। बाणियां के बकायदा नाम ने। गुरु ग्रंथ साहब विच जितनियां बाणियां ने सब के नाम ने। किसी का नाम सुखमनी, किसी को संस्कृति श्लोक, किसी को चौबोले कहते हैं, किसी को गाथा कहते हैं, किसी को फुने छंद कहते हैं। कोई श्लोक वारां तो वधीक दी बाणी है, कोई वारां ने वख-वख। इसे तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी पहली बाणी है वो है जप। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांतिक जिहड़ा नुकता है वो है जप, वो है जाप। जप का मतलब है किसी एक अखर नूं बार बार दोहराना, चलाई जाना, चलाई जाना। हुण जप किवें करना है, जप किसदा करना है, जप किस वक्त करना है, जप कौन कर सकता है, सारी व्याख्या जपजी साहब विच चलती है। किसदा जप करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ਇਹਦਾ जप करना। ये श्लोक है। जप किवें करिए, जप कौन कर सकता है? बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है जपजी साहब के अंदर, और मनुख नूं पहुंचाउण की कोशिश की है गुरु नानक ने सच खंड तक। परमात्मा की है सच। लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, जिथे तुसी बैठे हो इसनूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सच की संगत करन आए ने, सत की संगत करन आए ने। सत कौन है? परमात्मा। सत कौन है? अकाल पुरख। सत कौन है? ईश्वर। उहदी संगत करन आया।
दिन भर काम धंधियां की संगत की, धियां पुत्रां की संगत की, धन संपदा की संगत की, यारां दोस्तां की संगत की, हो सकता विकारां की संगत की, पर एक घंटा अद्धा घंटा सत की संगत कर ले। खुशकिस्मत है वह मनुख जिहदा सत दे नाल संग हो जाए, ते जिहदा सत दे नाल संग हो जाता है, असी पता उसनूं की कहने सत संगी। ये ते सत संगी, इहदा सत नाल संग हो गया। पहचान की होगी सतसंगी दी, उहदा वेखना सच होगा, उहदा बोलना सच होगा, उहदा सुनना सच होगा, उहदा सोचना सच होगा, रोम रोम विचों सच निकलेगा। सतसंगी, सच नाल संगत हो गई, सत नाल संग बन गए। सच एक परम शक्ति है, सच एक परम नूर है, सच एक परम आनंद है, सच एक परम मस्ती है, सच एक परम खेड़ा है। मनुख दे कोल ये खेड़ा दिखाई नहीं देता, मनुख दे कोल ये मस्ती दिखाई नहीं देती, मनुख दे कोल ये आनंद ते प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस वास्ते गुरुद्वारे विच बैठा होया भी मनुख कई दफा गुस्ताखी माफ झूठ संगी ते हुंदा है, सतसंगी नहीं। गुरुद्वारे आ जाना होर गल है, सतसंगी हो जाना होर गल है। वरना गुरुद्वारे बैठे हुए भी कई झूठ संगी होंदे ने, सतसंगी नहीं। सतसंगी होना कोई मामूली गल ना समझना, बच्चियां दी खेल ना समझना। सतसंगी होना, सत नाल संग स्थापन कर लेना, सत नाल रिश्ता जोड़ लेना, सत दे नाल संबंध जोड़ लेना, सत नूं अपना संबंधी बना लेना बहुत वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। सत नाल संबंध जुड़ सके, सत नाल रिश्ता जुड़ सके, उस वास्ते जो तौर तरीका गुरमत ने दसिया जप जाप। ते तुसी आखोगे जप किवें करना है? मैं जिहड़ी गल तुहाडे सामने रखांगा वो ना मेरा निजी ख्याल है ते ना ही मेरा निजी अनुभव है। गुरबाणी नूं पढ़िया है, व्याकरण दृष्टि अनुसार जो अर्थ बोधां दा थोड़ा जिहा पता चलिया है वो मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। जिहड़ी गल आखांगा उसकी गुरबाणी तशरीह कर देगी, ते फिर मनना न मनना वो तुहाडे फैसले ते है। सुनाना मेरा फर्ज और सुना के मनना मेरा फर्ज, सुन के मनना तुहाडा फर्ज। जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा। साहब कहते असीं सदके जाते हैं उन्हां तो, कुर्बान जाते हैं जिन्हां ने सुन के मन ले। पहले सुनना है, इतनी मैं अर्ज करना, मनना बाद च, पहले सुनना है। चार पौड़ियां सुनिए दियां पहले ने, जिन्हों सुनिया ही नहीं उन्होंने मनना की। पहले तो सुनना है तां पता चलेगा। तो जिन्नी सुन के मनिया हों तिन बलहारे जा, जिन्हें सुन के मन लिया। तो जब मन लिया तो उन्हें की करना है? संबंध जोड़ना है। तो संबंध जोड़े किस तरह जोड़ेगा? जप नाल, जाप नाल। जाप का की तरीका है? साढ़े देश विच जिहड़े अभ्यासी मनुख ने वो इस ढंग के दावे करते हैं भी एक जल्दी हुई दीवे की लो सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो, जाप करो। कोई कहता ध्यान इत्थे जोड़ो। सनातन मत ते साढ़े देश के कुछ गुरमतीए अखवाण वाले भी ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक की तस्वीर सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो। ये ते आकार हो गए, तस्वीर ते आकार है, वजूद है। ते सहब कहने निराकार, उहदा कोई वजूद ही नहीं, उहदी कोई तस्वीर नहीं, उहदा कोई रंग रूप नहीं, वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे तस्वीर विच ही ध्यान जोड़ना है तो ये ते मर्यादा हिंदुस्तान विच पहले भी मौजूद सी। सनातन मत दी गुरु नानक नूं माणन दी की लोड़ सी? सतगुरुदेव जी महाराज ने जो नारा लाया निराकार, कोई आकार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई शक्ल नहीं। चक्र चेन हर बरम जात हर पात नहीं चे, साफ कह देता। वो मनुख की मूर्ति भी नहीं है, सोकम मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साध कर हारे क्यों न देखन पाए। वो मनुख भी नहीं है, वो नर ते नारी भी नहीं है।
क्योंकि मनुख मन लईए तो फिर मनना पेगा उहदा जन्म भी होया है, मनुख मन लईए तो यह भी मनना पेगा उहदे माँ बाप भी हैं, मनुख मन लईए तो मनना पेगा उहदी मौत भी होगी, क्योंकि जिहड़ा जमे है वह मरेगा, फिर रब का भी जनाजा निकलेगा, फिर परमात्मा की भी लाश होगी, फिर उन्होंने भी जलाना पेगा, उहदी भी कबर बनानी पेगी। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है। तो जब वो शक्ति है तो कोई तस्वीर बना के उहदे ध्यान जोड़ना, मैं समझदा है परमात्मा की गुरु की बहुत वड्डी तोहीन है। गुरु भी आकार नहीं, एक निराकार हस्ती है, निराकार नहीं निराकार नाल जोड़ना है। और गुरु की है शब्द, धुन, आवाज। तमाम अभ्यासी मनुख अभ्यास करके जब अभ्यास दियां शिखरतां नूं उन्होंने छोया तो उन्होंने यह कहा कि परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक धुन है, अनाहद नाद है। हुण गुरबाणी को तुसी पुछो भी जे असी नाम जपीए तो की होवेगा, साहब कहने दो गल्लां होणगियां। नाम जपण वाले मनुख के अंदर, नाम अभ्यासी मनुख के अंदर दो घटनावां घटणगियां। केड़ियां? नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन से भरम अंधेरा। एक तो उसके अंदर प्रकाश होगा, चानना। दूसरा, चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। ਉਹਦੇ अंदर एक अनहद बाजा वजे, अनहद बाणी नाद वजाया। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाए अचरज दसमा। साहिब कन अनहद नाद वज पैंदा है, एक ऐसा नाद जिसनों प्रगट करने वास्ते कोई रंग रूप ते नहीं, अंदर वज पैंदा। इस वास्ते भारत के प्राचीन कुछ ऋषि मुनिया ने कह दिता परमात्मा शब्द है, धुन है, परमात्मा नूर है, प्रकाश है, चानना है। और आप सुन के हैरान होवोगे, एक विचार नाल जगत के तमाम रहबरी पुरुष सहमत ने, एकाग्रता बख्शनी। वो की संसार की उत्पत्ति किवें होई है? मुहम्मद साहब का कहना है कि खुदा तो एक कुन नाम की धुन होई ते जगत बन गया। एकाग्रता बख्शनी, कुन एक धुन होई, जगत बन गया। लोगोस नाम की एक धुन होई, संसार बन गया। ऐसा बाइबल का संदेश है। ओंकार की धुन होई ते संसार बन गया, ऐसा स्वामी महावीर कहते हैं। जिहड़ा ओंकार शब्द है बड़ा पुराना है, इनू जैनियां ने अपनाया है, इनू सनातनियां ने भी अपनाया है। और इतिहास की पड़चोल करिए तो ओंकार शब्द बहुत पुराना नहीं तो घट तो घट 4000 साल से पुराना है। ये सबूत मौजूद है। हिंदुस्तान दे नर्मदा के कंढे देते एक तीर्थ मौजूद है बहुत वड्डा, उस तीर्थ का नाम है ओंकार जी। जिहड़ा मंदिर बनया है वो पहाड़ को तराश के बनाया गया है, पत्थर पहाड़ से। तो उस मंदिर का नाम है ओंकार। रेलवे स्टेशन का नाम भी ओंकार जी है। और हर पूर्णमाशी को हिंदू जगत उत्थे पहुंचता है तीर्थ यात्रा वास्ते। शिवरात्रि वाले दिन गालबन कोई 15-20 लाख मनुख पहुंच जाते। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अस्थान भी इस तीर्थ देते है। और इस तीर्थ के उत्ते गुरु नानक ने एक बाणी उच्चारण की थी, केड़ी? दक्षिणी ओंकार, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, दक्षिणी ओंकार। ये तीर्थ दक्षिण देश है हिंदुस्तान के। ते दूसरा रामकली दक्षिणी, जिन्होंने कभी थोड़ी जी संगीत की पड़चोल की है ना, तो हिंदुस्तान के दो तरह का संगीत बड़ा प्रचलित है, पूर्वी संगीत ते दक्षिणी। बड़ी गल है ना, पूर्व का संगीत ते दक्षिण का संगीत। लिखिया होंगे साहब, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। गौड़ी गाओ पर पूरब की गौड़ी, दक्षिण की गौड़ी नहीं। दक्षिण की गौड़ी और गाई जाती। रामकली दक्षिणी महला पहला, भाई ये रामकली दक्षिण की रामकली, पूर्व की रामकली नहीं, दक्षिण की रामकली। गौड़ी गावनी है, दक्षिण की नहीं, पूर्व की गौड़ी। बड़ा ख्याल रखे मेरे पातशाह ने।
कि ये संगीत इत्थे पूर्वी संगीत चाहिए, इत्थे दक्षिणी संगीत चाहिए। ये गल वखरी है कि सिख जगत ये गल्लां खो गई, और जे ना ध्यान दिता तो बहुत कुछ होर भी खो जाएगा। असी बहुत कुछ गवाया है, प्राप्त कख नहीं किया। इतनी मैरिज करके बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ गवाया। तो उस तीर्थ के उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बाणी उचारण की थी। उस बाणी का नाम है ओंकार, और वो दक्षिणी रामकली विच उचारण की है गुरु नानक ने। उत्थों दे पांदियां नूं जिहड़े किसी हद तक विद्या दे वो बड़े निपुण पंडित सन, क्योंकि ओंकार जी जिहड़ा तीर्थ है ये विद्या का केंद्र सी। इत्थे आके ब्राह्मण पढ़ते सन, बड़े बड़े विद्यालय सन, हुण भी है। गुरु नानक ने इत्थे जिहड़ी बाणी उचारण की थी उस दियां मूल पंक्तियां ने, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। की जंजाल विच पिया विद्या दे, हिरदे दी तख्ती दिते राम दा नाम लिख। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। जिस ओंकार तो सारा जगत पैदा होया, उस ओंकार नाल जुड़न की कोशिश कर। ये इट्टां ते पत्थरां दा जिहड़ा मंदिर खड़ा है, तो इनू ओंकार आखी जांदा नहीं, ये नहीं। सुन पांदे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। तो मैं अर्ज कर रहा सी, जैनी भी ओंकार शब्द का जाप करते हैं। वो कहते हैं परमात्मा तो ओंकार की धुन हुई संसार बन गया। सनातनी ऋषि कहते हैं ओम की धुन हुई, ओम ते जगत बन गया। मुहम्मद साहब का फरमान, कुन नाम की एक धुन हुई संसार बन गया। लोगोस नाम की एक धुन हुई, जगत की बनतर आलमे वजूद विच आई। ऐसा ईसा का ख्याल। गुरु नानक देव जी महाराज तो पूछिए, पातशाह जगत किवें बनिया? एक पंक्ति च गल मुकाई है गुरु नानक ने, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया। एको कवाओ, एक धुन तो लखां जिंदगियां दे दरिया चलता है। किधरे कीड़ियां दे दरिया, पशुओं के दरिया, पंछियों के दरिया, मनुखों के दरिया, वनस्पति के दरिया, सूक्ष्म जंतुओं के दरिया, अस्थूल जंतुओं के दरिया, जिंदगी के दरिया ही चलता है। अनंत दरिया चलता है एक शब्द तो, एक धुन तो। इस वास्ते भारत के प्राचीन ऋषि कहते आए हैं कि परमात्मा एक धुन है, परमात्मा एक नूर है, प्रकाश। नाम जपण नाल की होवेगा? गुरबाणी कहती है नूर प्रगट होवेगा और अनहद नाद प्रगट होगा, शब्द प्रगट होगा। वो अंदर है, उस शब्द का वासा किथे है? राधा स्वामियों का प्रचार है कि सिख जगत नूं अनहद नाद का कोई पता नहीं। चलो मन लेंदे हां, सिख जगत नूं नहीं पता, पर सिख जगत के गुरु नूं पता है अनहद नाद का वासा किथे। असीं अपने गुरु तो प्रेरणा लेनी। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजे ना। ਉਹ ਨਾਦ घट घट ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ? ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਭੈਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। और जिस वक्त वो सुनाई देता है, रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु कहना बंद हो जाता है, नहीं कहती रसन, लोड़ ही नहीं कहती। फिर साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। श्वास चल रहे ने, शब्द चल रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु आखने की लोड़ ही नहीं। गल खत्म। आखिरी स्टेज पर पहुंच गए, आखिरी अवस्था पर पहुंच गए। परमात्मा की बंदगी कर्म नहीं, हुण किरिया बन गई। कर्म किरिया दो शब्द तुसीं श्रवण कीते होने ने। कर्म जो करना पे, क्रिया जो हो रही है, कीती नहीं जाई रही, हो रही है। आ जिहड़े श्वास ने ना, मैं लैंदा नहीं पिया, आप ही चल रहे, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ आपे ਚੱਲਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ श्वास मैं ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? आपे ही चल रहा, अपने आप चल रहा।
दिल अपने आप धड़क रहा है, असी नहीं धड़का रहे। नब्ज अपने आप चल रही है, असी नहीं चला रहे। श्वास अपने आप चल रहे हैं, असी नहीं चला रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं कह रहा, शब्द अपने आप चल रहे हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना। कलगीधर पातशाह कहते मेरे सिख दी सुरत इतनी उच्ची चली जावे कि जाप सो अजप्पा जावे। रसना नाल जाप ना करे फिर भी जाप जारी है। इतना उच्चा जाए मेरा सिख। अनादनाद उसके अंदर प्रगट हो जाए। अनादनाद तो दो गल्लां प्रगट होणगियां पहुंचे हुए मनुख के अंदर। एक तो उसके अंदर प्रकाश होवेगा, एक उसके अंदर अनहदनाद वजेगा। ये दो गल्लां की पहचान है। धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है, धर्मी हो जाना एक साधना है। इतनी मैं अर्ज कर रही। श्रृंगार करके कोई भी धर्मी दिस सकता है, पर साधना करके धर्मी हो जाना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। बच्चियां की खेल नहीं। इतनी मैं अर्ज कर रही। ते लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, 4 अरब की आबादी दे विच जमीन के उत्ते मनुखों की अज 4 अरब के करीब आबादी है। तुसी 2 हत्थां दी उंगलियां ते उन्हां मनुखों नूं गिण सकदे हो जिन्हां दे अंदर नूर प्रगट होया है, जिन्हां दे अंदर अनहद नाद प्रगट होया। बाकी ते गल नहीं है, सिर्फ विचार ही ने, मनुख की पहुंच नहीं। कारण मनुख साधना नहीं कर रहा। तुसी आखोगे फिर साधना की है? गुरु घर दे जप ते जाप। जप ते जाप किवें करिए? तो गुरु नानक की एक पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरुमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी धुन दे च ध्यान जोड़ना बड़ी औखी गल है। करके देखोगे बड़ी औखी गल है। यह जिहड़ी कथा है ना, 1 घंटा 2 घंटा मैं कर सकदा, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कीर्तन कोई 4 घंटे भी कर सकता, सारी रात भी कर सकता, कोई वड्डी गल नहीं। इनू मैं कोई बहुत वड्डी गल नहीं मनता। ड्यूटी है अखंड पाठ की 8-8 घंटे भी कई कर लेंगे। मैं हिंदुस्तान में देखे एक पाठी 4-4 ड्यूटियां भी दे देंगे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। इत्थे तुसी 2-3 घंटे बैठ सकते हो, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। पर वाहिगुरु वाहिगुरु की कोई धुन अलापे, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़े, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट आ जिहड़ी गल मैं कह रहा दावे नाल कह रहा, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट तो शायद मैं 1 मिनट ज्यादा कह रहा, आधा मिनट भी नहीं कर सकोगे। करके देखना नहीं तो साहब कहने अगर कोई 1 सैकंड वास्ते भी कर लवे, 1 सैकंड वास्ते गल बन जाएगी। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच नाल। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक कहते 1 सैकंड में, 1 सैकंड दे तू जाप करते गल बन जाएगी। 1 सैकंड ते तुसी आखोगे 1 सैकंड किधरे अत कथनी ते नहीं। खिमा करनी 7 वचन वो होंदे ने जो वधा के नहीं बयान किए जाते, घटा के नहीं बयान किए जाते। उन्होंने कहते हैं 7 वचन। जिहड़ी गल वधा के बयान की जाए उन्होंने कहते हैं अति उपमा अलंकार, वधा के बयान कर दी गई है। तो जिहड़ी गल घटा के बयान कर दी जाए वो निंदा है। जिहड़े सतपुरुष ने ये ना वधा के गल कर देन ना घटा के गल कर देन, जितनी गल है उतनी बयान करते हैं। इस वास्ते सतपुरुषों के वचन सत्य वचन होंगे, वो ना वधा के गल आखे। कवि लोग कई दफा गल वधा के कह देंगे, घटा के भी कह देंगे, पर सतपुरखों के जिहड़े वचन होंगे ने वो कल्पना के उत्ते नहीं खड़े, सच्चाई के उत्ते खड़े होंगे। गल वधा के नहीं कहते, गल घटा के नहीं कहते, गल जितनी है उतनी कहते। 1 छिन दे च गल बन जाएगी। पर हुण 1 छिन केड़ा कि वाहिगुरु वाहिगुरु की बंदा धुन अलापे, उहदे च ध्यान जोड़े। हुण तुसीं करके वेखना, ध्यान कदी सज्जे जांदा कदी खब्बे जांदा, जुड़दा ही नहीं। कारण की है? गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान है कि बाहर जाण नूं परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे सानू दिते ने, जिहड़े 9 इंद्र ने ना, 9 दरवाजे। ते अंदर असी जा सकीए, अनहद नाद सुन सकीए, प्रकाश वेख सकीए, इको ही दरवाजा है। उस दरवाजे नूं आख्या गया है 10वां दरवाजा, 10म द्वार करके गुरमत विच कहा गया। 10म द्वार, द्वार कहने दरवाजे, और इसका बड़ा गुरबाणी च जिक्र है। 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चूईजे। बई ये जिहड़े 9 दरवाजे ने
रस इत्थे भी है पर बड़ा फिक्का। अखां दा रस, जबान दा रस, कन्नां दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस। मनुख नूं रस चाहिए। जिथे रस नहीं मिलेगा बंदे नूं नींद आ जाएगी, सौ जाएगा बंदा, बोर हो जाएगा, उठ जाएगा, परेशान बेचैन हो जाएगा। कोई रस चाहिए। इन्हां 9 दरवाजियां दे चों किसी ना किसी दरवाजे का रस चाहिए बंदे। अगर नहीं, बंदा नहीं बैठ सकेगा उस महफिल विच जिथे रस नहीं है। तो हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ी गुरबाणी है इन्हां 9 दरवाजियां का रस है ही नहीं है। तुसीं जबान नाल चख के नहीं कह सकते गुरबाणी खट्टी है, मिठी है, सलूणी है, नमकीन है, किहो जिहां दी है। नहीं, ये जबान का रस नहीं है। ये अखां का रस भी नहीं भी तुसीं वेख लो। ये कन्नां का रस भी नहीं है। ये खलड़ी का रस भी नहीं। ये नासका का रस भी नहीं। ये इन्हां 9 दरवाजियां का रस नहीं है। ये 10वें द्वार का रस है। 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। अमृतमयी रस 10वें द्वार है। इन्हां 9 दरवाजियां ते नहीं। ते हुण भगत कबीर कहंदे ने, 9 घर देख जो भूली कामण, वस्त अनूप न पाई। कहो कबीर नवें घर मूसे 10वें तक समाई। ये जिहड़ी कामण, ये जो जीव आत्मा है, ये जो मनुख का ध्यान है, मनुख की चेतना है, ये 9 दरवाजियां च भटक के रह जाती है। और ये 9 दरवाजे एक भूल भुलैया ने। दिल्ली ते लखनऊ दे भूल भुलैया बनी हुई है। उन्होंने कहते हैं भूल भुलैया। एक दफा बंदा अंदर चला जाए, इंटर हो जाए, फिर बाहर निकलना होगा। जिन्ने चिर तक कोई गाइड ना आवे नहीं निकल सकेगा। बंदा फस जाता है, इधरों निकलना इधरों निकलना। जितना वो निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर फस जाता, निकलता ही। फिर जिहड़े उत्थे दे रहने वाले मुंतजिम ने, उन्होंने इंतजाम कर रखे कि जिहड़ा बंदा बिल्कुल ही ना निकल सके उन्होंने फिर कढो, क्योंकि अंदर मत्था मारदियां मारदियां थक जाएगा, परेशान होगा। तो कबीर कहते हैं ये जिहड़े 9 दरवाजे ने ना, ये भूल भुलैया ने। बंदा इन्हां 'च ही भटक के रह जाता सारी जिंदगी। अखां दा रस माण रहा है, उगता गया। जबान का रस हुण माणदा पिया। जबान के रस तो उगताया है, कन्नां दे रस ते चला गया। कन्नां दे रस तो बेचैन होया, हुण खलड़ी का रस चाहिए, स्पर्शता का। ते खलड़ी के रस तो बेचैन होया, नासका का रस चाहिए। नासका के रस तो औखा होया, फिर अखां का रस चाहिए, फिर कन्नां का रस चाहिए। इसे च भुलिया है। बुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी। मुड़ मुड़ के भुलता है, बार बार भुलता है। एक गलती साडे कोल एक दफा नहीं हुई, बार बार हुई है। कहन जो एक गलती सिर्फ एक दफा करे वो मनुख है। जो एक गलती दोबारा करे मनुखता तो थल्ले है, पशु है। तो जो एक गलती नूं बार बार करी जाए ये तो शैतान है, कोरा शैतान है, दैंत है। तो गुस्ताखी माफ संसार दे मनुख विरले ने। जो गलती करे ही ना उन्होंने कहते देवता है, फरिश्ता है, भुल करता ही नहीं। भुल की है सिर्फ एक दफा, मनुख है, मनुख का सुभाव है, भुलेगा। माटी का क्या धोखे स्वामी मानस की गति, मनुख भुलेगा। इंसान जो लफ्ज है ये अरबी का है, तो मैं ये अखरी अर्थ पढ़े ने अरबी शब्दकोश के। अखरी अर्थ ने भुल्लां करने वाला, गलतियां करने वाला। इंसान के अखरी अर्थ ही बनते और कुछ नहीं। पर एक गलती एक दफा होवे ये इंसानी स्वभाव है, ये मनुखी फितरत है। क्योंकि मनुख सीखता ही गलतियां तो, मनुख सीखता ही भुलना तो है, उंज नहीं सीख सकता। इतनी भी मैरिज कर लें, सीधा ही जो सीख जाए बिना भुल कीते ही सीख जाए वो तो फरिश्ता है, वो तो देवता है। तो जो भुलना तो सीखे वो मनुख है, तो जो भुलना तो भी ना सीखे वो पशु है। तो भुलना करना ही जिसका स्वभाव हो जाए तो शैतान है, वो तो दैंत है। वो तो संसार वास्ते बड़ा खतरनाक होगा, अपने वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा, जगत वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा। तो भगत कबीर कहते हैं भुलावड़े भुली। बार बार बंदा इन्हां 9 इंद्रियां च भटक रहा है, भुल रहा है। 9 घर देख जो भूली कामण, वस्त अनूप ना पाई। वो जी अनुपम वस्तु है इन्हां 9 दरवाजियां ते नहीं है, 10वें ते है। अनुपम वस्तु, परम वस्तु की एक नूर, एक अनाहद नाद। ऐसा नाद जिन्हों सुनदे ही बंदा बिस्माद हो जाए। ऐसा नूर जिन्हों वेखदे ही तबक रोशन हो जान सारे। वो एक प्रकाश है
वो एक नाद है पर 10वें द्वार ते। साहब कहते ने 9 दरवाज नवें दर फीके रस अमृत 10वें चुईजे। गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुपत रखाया। वो जो 10वां द्वार है गुपत है 9 प्रगट ने। ऐ तुसी मेरी अखां वेख सकते हो, मैं थोड़ी अखां वेख सकदा, कन्न दिखाई दे रहे हैं, जबान वेख सकते हैं, नासका वेख सकते हैं, खलड़ी वेख सकते हैं। हुण 10वां द्वार किस तरह दिखाओगे, किवें वेखोगे? इत्थे है गुपत है, मस्तक विच गुपत है। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुपत रखाया। हुण ये जिहड़े 9 दरवाजे ने खुले ने 10वां बंद पे ते 10वां है भी गुपत। एक ते बंद पे है, एक गुपत पे। इसे 10वें द्वार का गुरु नानक जिक्र करते हैं। सो दर के हा सो घर के हा जित बै सर्व संभाले। वो घर केड़ा है, वो दर केड़ा है, हे अकाल पुरख जिथे बैठ के तू जगत के जीवां की संभाल करता है। वो घर ते वो दर का मतलब किधरे ऐसा ना समझ लेना कोई सिंघासन है उपर सोने का जो है चंदोआ होवे, उहदे उत्ते रब बैठा होवे ते ओहदे अगों बैठे होण कौन? रागी वाजे नाद अनेक असंखां केते वावण हारे केते राग भरी सो कईयन केते गावण हारे। बई बहुत सारे राग रागणियां हो रही होवन, साज हो रहे हो, नहीं इस तरह की कोई गल नहीं। इस चक्कर च ना फिर तो परमात्मा एक व्यक्ति साबित हो गया। वो तो एक व्यक्ति है, वो तो फिर मनुख साबित हो गया। दरअसल साहब जो इत्थे कह रहे हैं वो जिहड़ा दर है, वो जिहड़ा घर है, उत्थे अनहद नाद वज रहे हैं। और जदों कोई मनुख उस अनहद नाद नूं सुन लैंदा है, तरह तरह के संगीत का जन्म होता है। और संगीत के जन्मदाते संत लोग ने, महापुरुष ने, भगत ने। संसार में संगीत का जन्म होया है भगतां करके, संतां करके, महापुरुषां करके। कभी बगौर मुताला कर लेना। कहते ने ग्वालियां विच बैठ के श्री कृष्ण अक्सर कहते सन मेरे अंदर एक धुन चलती है। तो ग्वाले कहते सन किहड़ी धुन चलती है? एक दिन सुक्के बांस नूं तोड़ के उहदे 7 सुराख कीते, होंठां दे नाल लाया उस बांस नूं ते बांस नूं कीता सुर दे च ना पै गया बांसुरी, बांस नूं सुर कीता, बांस दे चों संगीत नूं जन्म दिता ते उहनूं वजा के दस्सिया है मेरे अंदर वजदी है, ये नाद मेरे अंदर वजदा है। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन गन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जो तत्व विचारे कोई। नामदेव कहते हैं चमड़े का मड़िया होया ढोल ते नहीं है पर मेरे अंदर वज रहे, मैं सुन रहा वज रहे। अक्सर जोगियां विच बैठ के शिव जी कहते सन मेरे अंदर एक नाद वजदा है। नाद केड़ा वजदा है? एक दिन डमरू वजा के बना के दिखा दिता, ये मेरे अंदर वजदा है। नरसी भगत अक्सर कहते सन मेरे अंदर एक धुन वजदी है, खड़ताला वजा के दस दिता है मेरे अंदर वजदी है। सुरस्ती ने दस दिता बीणा वजा के ये धुन मेरे अंदर वजदी है। एक तारा वजा के नारद ने दस दिता मेरे अंदर ये धुन वजदी है। और मैं अर्ज करदे हां बाणी गुरु नानक ते नाजल होंदी सी ते गाउंदे गुरु नानक आप सन। मरदाना सिर्फ रबाब बजांदा सी, मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है तो बाणी मरदाने ते थोड़ी आई है, गुरु नानक ते आई है। गुरु नानक आप गांदे ने, कदी भैरवी पै गांदे ने, कदी रामकली पै गांदे, कदी आसा पै गांदे ने, कदी सोरठ पै गांदे, कदी श्री राग पै गा रहे ने, कदी जैतसी पै गा रहे ने। वकत दा राग, वकत दी रागनी गुरु नानक दे अंतर आत्मे च प्रगट हो रही है। पुछिए पातशाह तो कि संगीत तुसी कित्थों सिखिया है, किहड़े संगीतकार कोलों सिखिया? नहीं, अनहद नाद प्रगट हो गया है ते अनहद नाद समुचे संगीत की खान है। उत्थों तरह तरह के राग संगीत जन्म लेंदे ने। वाजे नाद अनेक असंखां केते वावण हारे। उस 10वें द्वार दे उत्ते अनेकां वाजियां की आवाज है, एक वाजे की आवाज नहीं। केते राग प्रीसों कईयन केते गावण हारे। उत्थे एक राग की धुन नहीं, अनेकां राग, बेअंत राग, बेशुमार राग। और वो जोड़ा अंदरों संगीत प्रगट होया, अंदरों राग प्रगट होया, उहदी बाद विच लोकां ने बैरूनी रूप विच साधना करके जगत विच लोकी संगीतकार बने। वरना संगीत के जन्मदाते महापुरुष ने, संगीत के जन्मदाते संत जन ने, ते निरे संगीत दे ही नहीं साजां के जन्मदाते संत जन ने। डमरू नूं जन्म दिता शिव जी ने, मुरली नूं जन्म दिता कृष्ण ने,
एक तारे नूं जन्म दिता नारद ने, मरदंग नूं जन्म दिता दक्षिणी भारत के संतां ने, और कहंदे ने रबाब की महिमा जिहड़ी हिंदुस्तान दे प्रचलित की थी गुरु नानक ने। सरंदे नूं जन्म दिता गुरु अर्जन देव जी ने। सत्ते ब्रह्मंडे ने कीर्तन करने तो इनकार कर दिता ते साहब आप सरंदा लैके बैठ गए कीर्तन करन। गुरु अर्जन देव जी बिलावल राग की धुन पे आलापदे ने। हुण पुछिए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो पातशाह ये बिलावल गावना तुसीं कित्थों सिखे, किस कोल सिखे, किहड़े रागी ने तुहानूं सिखाया, किहड़े संगीतकार कोलों सिखे? नहीं, संगीत अंदरों पे फुटता है, राग अंदरों पे फुटता है। वक्त का राग गुरु अर्जन देव जी महाराज आप पे आलापदे ने। बाबा दीप सिंह शहीद जिथे सवा मन के बस्तर तन दे उत्ते सजा के रखते सन, उत्थे नाल सरंदा भी रखते सन। मैदान जंग च लड़दियां लड़दियां जिथे अमृत वेला हो जाए, शस्त्रां नूं एक पासे रख के सरंदे की सुर दे विच अपनी आत्मा की सुर जोड़ते सन, रब नाल जुड़ जाते सन। दरअसल रब नाल जिहड़ा बंदा जुड़ेगा उहदे अंदरों संगीत जरूर प्रगट होगा। साडे देश का महाकवि हिंदी ते बंगला का टैगोर कहा करता सी, जिन्हों फुल नहीं चंगे लगते, जिन्हों संगीत नहीं चंगा लगता, जिन्हों कविता नहीं चंगी लगती, जिन्हों मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, उस बंदे का जिंदा रहना संसार वास्ते नुकसानदा होगा, हानिकारक होगा। क्योंकि बंदा पत्थर होगा, ये बंदा नहीं होगा, ये कठोर होगा, ये बंदा नहीं होगा, ये दैंत होगा। इनू कविता नहीं चंगी लगती, इनू संगीत नहीं चंगा लगता, इनू फुल नहीं चंगे लगते, इनू मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते। स्पष्ट गल हो गई कि इसका हृदय बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, बड़ा कठोर है। रब नाल जुड़े मनुख का हृदय कोमल हो जाता है। तो मैं अर्ज करा, ये जिहड़ा संगीत है ये सतपुरुषों की देन है, महापुरुषों की देन है। उन्होंने जगत विच प्रगट किया, बाहरों फिर महापुरुषों की नकल चल पैंदी, फिर साधना की। तो अनहद नाद तक पहुंचने वास्ते नाद का आसरा लेना, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी है, ये ध्यान जोड़ना है। कथा क्यों सुननी है, कीर्तन क्यों सुनना है, गुरुद्वारे क्यों आना है, असी जाप कर सके, इतनी मेहनत करते। गुरु सतगुर का जो सिख अखा है, सो भल के उठ हर नाम है। ये जोड़ा नितनेम करना है, बाकी कुछ करना है तो बाद करना है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बाद पहले जाप, पहले नाम का चिंतन। सिख जगत विच ये नहीं रहा, इस वास्ते अभ्यासी पैदा होने बंद हो गए। हुण ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन कोई नहीं। अज तो 40-50 साल पिछे जाइए, बड़े ब्रह्म ज्ञानी सन साडे विच, बहुत अच्छे। बाबा निधान सिंह सी, बाबा अतर सिंह मस्तूआणे वाले हैगे सन, बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले हैगे सन, और अकाली कौर सिंह जी कश्मीर वाले हैगे सन, संत भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बन्नू वाले हैगे सन, बाबा करम सिंह होती मरधान वाले हैगे सन। अज तुसी चिराग लेके ढूंढने वास्ते जाओ, ब्रह्म ज्ञानी की कोई दर्शन नहीं, किधरे भी नहीं। मैं थोड़ा मायूस नहीं करता, निराश नहीं करता। हो सकता मेरी खोज गलत होवे, पर मैं भटक भटक के देखे अभ्यासी कोई नहीं। कारण अभ्यास ही नहीं रहा, जाप ही नहीं रहा। हर घर में एक रसोई तो बनी हुई है ना, किचन बने होया हर घर में, जिथे असी भोजन बनाते हैं। हर घर में 4-5 फुट 3 फुट थां ऐसी भी होनी चाहिए जिथे बैठ के बंदा जाप कर सके, चाहिए। वह भी एक रसोई है, उत्थे आत्मा का भोजन बनाना है, शरीर का भोजन बन रहा है। जिस किचन दे एक ऐसा किचन भी चाहिए, एक ऐसी रसोई भी चाहिए है जिथे रूह की खुराक बनाई जा सके, आत्मा की खुराक बनाई जा सके। उत्थे बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो, और रोज अगर उत्थे जाप हो, वो जगह इतनी पवित्र हो जाएगी, वो जगह इतनी महान हो जाएगी, उतों की वाइब्रेशन ऐसी सोहनी बनेगी। अगर ठग ते शैतान भी उत्थे आके बैठे, उसकी रसना तो वाहिगुरु निकल जाएगा, लाजमी निकलेगा, उस जगह का असर हो गया। इनू कहते ना अस्थान भेद, जगह का असर। हुण ये जाप नहीं, तो ये जाप ना होवे ते सब कुछ तुसी करी जाओ, क्षमा करनी ये कोई बहुता लाभकारी नहीं होता। ये उत्ते एक मैं दलील देना होना, शायद थोड़े वास्ते काबिल कबूल हो गए। एक किसान ने, जमींदार ने जमीन विच हल चलाया, खाद भी पाई, पानी भी दिता, जमीन विच बत्तर भी सी, चारों पासे वाड़ भी बना ली, रखवाली करने वास्ते बैठ भी गया। 15-20 दिन लंघ गए,
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਫਾ ਚਲਾਇਆ, 1 ਦਫਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਤਰ ਹੈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਫੇਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਬੀਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੋਧੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਟਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੋਵਿਆਂ ਕੋਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਤੇ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਵਰਨ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੇ? ਤੇ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਹਿ ਕੋ ਮਨ ਮੇ ਜਹ ਕੋ ਅਮਤੋਜ ਸਵੇ ਜਗ ਚਾਇਓ, ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਬੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੁਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲਾਪਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਕੀ? ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਨਾਮ। ਨਵਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ। ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ 2 ਫੁੱਟ ਖੋਤੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 4 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 8 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 100 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ 400 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ 4 ਫੁੱਟ ਖੁਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ।
8 ਫੁੱਟ ਖੋਦੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ 400 ਫੁੱਟ ਖੋਦੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਧਰੇ 2 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 200 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਬਹੁਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਹਟਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2 ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ में इसका विश्राम। तो हुण मुख्तसर मैं समाप्ति करा। गुरु अमरदास जी महाराज कहते 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखा। ये 9 दरवाजे ते प्रगट ने, ते वो जिहड़ा 10वां द्वार है गुप्त है, ते 9 नित नाम वो 10वें द्वार ते है, वो परम प्रकाश 10वें द्वार ते है, वो अनहद नाद भी 10वें द्वार ते है। ते हुण किस तरह पहुंचीए उत्थे तक, किस तरह पहुंचीए? कुछ युक्तियां ते उगतियां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मैं तुहाडे सामने रखा। कबीर कहते ना मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। कहते मैं इन्हां 9 दरवाजियां नूं बंद कर छड़िया, 10वां खुल गए ते अनहद नाद वज पे। 9 दरवाजे बंद कर छड़े ने, यह मतलब नहीं कि कन्नां दे च रुई दे दित्ती है, अखां बंद कर छड़ियां, बोलना ही बंद मौनी हो गया, ऐसी गल नहीं। कबीर कह रहे हैं मेरी जबान बोलती है, गलत नहीं बोलती, कन्न सुनते हैं, गलत नहीं सुनते, अखां देखदियां ने, गलत नहीं देखदियां, खलड़ी स्पर्श करती है, गलत नहीं करती, नासका सूंघदी है, गलत नहीं सूंघदी। मैं गलत वेखण वास्ते अखां बंद कर लईआं, गलत सुनने वास्ते कन्न बंद कर लै, गलत बोलने वास्ते रसना बंद कर ले, गल खत्म, दरवाजे बंद कर देते। मूंह दे लिए दरवाजे, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं बोलेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं वेखेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं सुनेगा। अचेतपणे च सारा अनर्थ होंदा साडे कोल, अचेतपणे च। तो कबीर कहते ना मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे, अनहद नाद वज पे 10वें द्वार पे। हुण पहली जिहड़ी झलक मिलती है वो अनहद नाद की मिलती है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी यही जिक्र किया है, जगमग जोत अनहद धुन गाज है। भाई साहब कहते हे प्रभु मैं अनहद नाद सुन रहा, तेरे दरवाजे पे नौबत वज रही है। तो 9 दरवाजे बंद कर छड़े, भाव इन्हां दा मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता। हुण कबीर कहते मैं 10वें द्वार ते पहुंच गया, 10वें द्वार दे बाहर अनहद नाद वज रहा है ते 10वां द्वार बंद है। द्वार तक पहुंचते हैं अनहद नाद वज पैंदा है। किसी बंदे की पहचान यही है कि यह बंदा 10वें द्वार तक पहुंच गया, बस इतनी पहचान है, वह अनहद नाद सुनेगा। तो 10वां द्वार खुल गया है तो उन्होंने प्रकाश की झलक दिखाई देगी, वो अंदर प्रकाश हो गया। ये 2 गल्लां ने। कबीर जिस वक्त 10वें द्वार तक पहुंचे ने ते अनहद नाद नूं सुनिया, वो हुण द्वार दे खुलण की प्रार्थना कर रहे हैं। दरमां दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु दरवाजा खोल, मैं तेरे दर्शन करा। तो हुण लकड़ का दरवाजा होवे तो खोल लेंगे, आप तोड़ भी लवांगे, खोलना की तोड़ भी लवांगे, जे नहीं खुलेगा तो नहीं। ये 10वें द्वार का जिक्र है। मस्जिद के बूहे खुला लेना आसान है, गुरुद्वारे के बूहे खुला लेना आसान है, मंदिर के दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाना आसान है, पर खिमा करना अपना 10वां द्वार खोलना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु हुण खोल के वार, दिखा ले दर्शन ऐसी बख्श करीजे। हे प्रभु ऐ दरवाजे खोल, अपना दीदार दे। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वाड़। मैं तेरे दर तक पहुंच गया, सिमरन करदियां करदियां, अभ्यास करदियां करदियां, जाप करदियां करदियां तेरे दर तक पहुंच गया। ते दर दी की पहचान है? अनहद नाद सुनाई देगा। अनहद नाद की है? वाजे नाद अनेक असंख्या केते वामन हारे केते राग परीसों कईयन केते गावण हारे। अणगिणत राग रागणियां, अणगिणत साजां दी आवाज उत्थे सुनाई देगी। तिथे नाद विनोद कोड आनंद, बड़ा ही परम आनंद, बड़ा ही परम रस है, करोड़ों तरह का संगीत है। पर भगत इत्थे इसते नहीं तृप्त आउंदा। कहंदा प्रभु तैनूं सुन ते लिया
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇੜ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਥ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮ ਨੂਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ। 5 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਲਸਫੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਧੁਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਵਾਕ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਔਖਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਰ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੌਕੇ ਪੈ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਮ ਦੁਆਰ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ।